اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Here you are watching your favorite program Iqra, and I am your host Dr. Jameel Rathor with Quranic religious program, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format and discipline of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 1 to 4 of Surah Al-Zumar of the 23rd part of Al-Quran. That means today we start another chapter of Holy Quran. That means we start today Surah Al-Zumar. And you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, when Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه
الله الواحد القهار. صدق الله العظيم. Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran, and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word-by-word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. Tanzilul Kitabi, Tanzilul Kitabi, Minallahil Azizil Hakim, Minallahil Azizil Hakim. Inna anzalna, Inna anzalna ilaykal kitaba, Ilaykal kitaba bilhaqqi, Bilhaqqi fa'budillaha, Fa'budillaha mukhlisan lahuddin, Mukhlisan lahuddin. Ala lillahi ddinul khalis, Ala lillahi ddinul khalis. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our program, because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic. And then we translated or romanized these verses, particularly for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet
as compared to English alphabet. And this text is followed by Urdu English translation, as well as we also give you the brief explanation of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us. And I pray God grant us the capability, understanding, and act upon Holy Quran and holy verses of Al-Quran. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. In Urdu, उतारी गई है ये किताब अल्लाह की तरफ से जो अजीज है, हकीम है. The sending down of the book is from Allah, the dignified, the wise. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. In Urdu, हमने उतारी है आपकी तरफ ये किताब हक के साथ, बस आप इबादत करें अल्लाह की, खास करते हुए उसके लिए इताअत को. In English, undoubtedly, we have sent down this book to you with truth. Therefore, worship Allah, being purely His devotee. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. In Urdu, खबरदार सिर्फ अल्लाह के लिए है दीन खालिस, और जिन्होंने बना लिए इसके सिवा और वाली और कहते हैं हम नहीं इबादत करते इनकी मगर महज इसलिए कि ये हमें अल्लाह का मुकर्रब बना दें. In English, yes, the sincere exclusive devotion is to Allah only, and those who have taken for protectors other than Allah say, we worship them only so that they may bring us nearer to Allah. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. In Urdu, बेशक अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा इनके दरमियान जिन बातों में ये इख्तिलाफ किया करते हैं. In English,
Allah will decide among them concerning that wherein they are differing. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. इन उर्दू, बिलाशुबा अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता उसको जो झूठा हो, बड़ा नाशुक्र हो. Undoubtedly, Allah guides not him who is a great ungrateful liar. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. इन उर्दू, अगर अल्लाह चाहता कि किसी को बेटा बनाए तो चुन लेता अपनी मखलूक से जिसको चाहता. वो पाक है, वही अल्लाह है जो एक है, सबसे जबरदस्त. In English, if Allah had willed to take a son for himself, he would have chosen whom he had pleased out of his creation. Sanctity is to him. He is Allah, the one, all dominant. नाज़रीन किराम, आज हमने कुरान की एक सूरह मुबारक सूरत ज़ुमर का आगाज़ किया है और इस सूरह मुबारक का आगाज़ कुरान की अज़मतों के साथ हो रहा है. और कुरान में कई ऐसी सूरतें या चैप्टर्स हैं जिनका आगाज़ कुरान की अज़मतों के साथ, उसकी बुलंदी के साथ, उसकी ग्रेटनेस के साथ हुआ करता है. चुनांचे इरशाद होता तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, ये किताब कोई ऐसी नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जो कि अजीज़ है, हिकमत वाला है, उस हकीम और अजीज़ रब की जानिब से नाजिल की गई है. ये इसलिए कहा गया कि कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का ये एतराज़ किया करते थे कि देखिए ये जो कुरान या आयतें सुनाई जा रही है, या तो वो साफ कह दिया करते थे कहानत है, जादू है, साहिर है, साहिर का कलाम है, या फिर कहते थे जनाब इनको कोई जिन्नात आकर बता देते हैं, कोई लोग कहीं से सुनकर ये आ गए हैं और वही बातें हमारे सामने दोहरा रहे हैं. लेकिन चूंकि ज़माना बदल रहा है, रोज़ नित नई चीज़ें ज़माने में आ रही है, लिहाजा कुरान के अहकामात सुने हुए आर्जी हैं, आज के दौर के मुताबिक हैं. लेकिन जब वक्त अपनी करवटें बदलेगा, गर्दिश लैल व नहार के साथ जब नई नई चीज़ें आएंगी तो कुरान की ये तालीमात ख़त्म हो जाएंगी और ये दीन मिट कर रह जाएगा. ये ख्याल मालूम हुआ कुफार और मुशरिकीन मक्का का था. आज भी 1450 साल गुजरने के बावजूद लोग यही होप रखते हैं. कुफार आज भी यही सोचते हैं कि शायद ये दीन पुराना हो गया, ये उस वक्त का दौर का दीन था, अब इस दीन की तालीमात इस वक्त के मुताबिक नहीं है. लेकिन ये खाम ख्याली है. अब दुनिया की जितनी भी तरक्की है, चाहे वो क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के हवाले से हो या क्रिएशन ऑफ ह्यूमन के हवाले से हो, आज जितनी भी दुनिया की तरक्की है वो सब की सब इस बात को मानने पर मजबूर है कि दुनिया जिस जानिब जा रही है ये कोई अनहोनी बात नहीं कर रही, बल्कि 1400 साल पहले जो कुरान ने बयान किया फ़कत उन्हीं बातों की तस्दीक कर रही है. इसके बाद अल्लाह फरमाता अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, कि अल्लाह के लिए दीन खालिस चाहिए, नहीं कि कुछ चीज़ें मुशरिकीन की ले लें, कुछ चीज़ें उसकी ले लें, कुछ चीज़ें उसकी ले लें, कुछ बातें इस्लाम की ले लें. नहीं जनाब, अगर इस्लाम के 100 अहकामात हैं कि 100 पर हमें मिन्नो आना अमल करना होगा. और फिर इसके बाद वो मशहूर मारूफ आया मुबारक
जो मुशरिकीन और अहले ईमान के दरमियान फ़र्क पैदा करती है वो बयान की जा रही है। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। वो कुफ़ार और मुशरिकीन का एक अक़ीदा ये था कि वो बुतों की इबादत करते थे और कहते थे कि हम इसलिए इबादत करते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे, ये उनका अक़ीदा था। और ज़ालिम ये कहते थे कि साहब हम अल्लाह तबारक व तआला इबादत के लायक नहीं है कि हम उसकी खुशामद करें तब वो खुश होगा, ये अल्लाह के लायक नहीं है। हम तो अल्लाह के बड़े बड़े बंदों की इबादत करेंगे, वो राज़ी हो जाएंगे, अल्लाह उनसे राज़ी है तो यकीनन अल्लाह भी हमसे राज़ी हो जाएगा। तो मालूम हुआ कि वो मुशरिकीन अल्लाह को मानते थे लेकिन उसके बड़े बड़े बंदों की इबादत किया करते थे। आज हमारा दूसरा अलमिया ये है कि बाज़ लोग जिसारत करते हैं और ये कह देते हैं बड़ी बेरहमी के साथ कि अंबिया और औलिया की बारगाह में उनकी आज़मत को बयान करना ये कुफार और मुशरिकीन का तरीक़ा है। बड़ी अजीब व गरीब बात है। याद रखिए, कुफ्र और ईमान के दरमियान एक अक़ीदा मामूली बाल बराबर फ़र्क हुआ करता है। कुफार और मुशरिकीन भी पत्थरों की इबादत करते थे, बुतों की। आज हम काबतुल्लाह के सामने झुक रहे हैं तो क्या हम वही कर रहे हैं? नहीं जनाब, हम काबतुल्लाह की आज़मत को बयान करते हैं, हम काबतुल्लाह की आज़मत के कायल हैं, इबादत फ़कत अल्लाह की करते हैं। हालांकि झुकते उसके सामने हैं लेकिन हमारा फम बिलीव होता है कि अल्लाह की इबादत करते हैं बेआईनी। इसी तरह अंबिया औलिया की बारगाह में हम जाते हैं तो हम अल्लाह का वसीला ज़रूर पकड़ते हैं लेकिन उनकी इबादत नहीं करते। मुशरिकीन मक्का उनकी बुतों की इबादत करते थे, हम इबादत फ़कत वहदहू ला शरीक की करते हैं, अंबिया औलिया की ताज़ीम किया करते हैं। और अंबिया औलिया से मांगना अगर शिरक हो तो सहाबा किराम माज़अल्लाह क्या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा करते थे। कभी बारिश की दुआएं मांग रहे हैं, कभी बारिश के रुकने की दुआएं मांग रहे हैं, कभी कहते थे कि हमारे लिए शिफा की दुआ कर दीजिए। आज भी बहुत से लोग मस्जिद के इमाम के पास आते हैं कि साहब हमारे लिए दुआ मांग लीजिए, तो क्या उससे मदद मांग रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि तुम दुआ मांग लो। क्यों? इसलिए कि वो ज्यादा परहेजगार है, इमाम है, उसके मांगने से अल्लाह मकबूल कर लेंगे। तो हम तो आज मस्जिद के इमाम को, किसी बड़े आलिम को देखते हैं, कहते हैं साहब हमारे लिए दुआ मांग दीजिए, तो हम भी उसको वसीला बना रहे हैं। तो क्या हम सारे के सारे मुशरिकीन हो गए? नहीं जनाब, हम फ़कत उनको बतौर वसीला बनाते हैं लेकिन उनकी इबादत नहीं करते। इबादत फ़कत खुदाए वहदहू ला शरीक की किया करते हैं। और यही फार्मूला दीन ईमान में, चाहे कोई जिंदा हो मुर्दा हो, इस्लाम जिंदा व मुर्दा से बहस नहीं कर सकता। इस्लाम तो तौहीद और शिर्क से बहस करता है। जिस तरह मस्जिद का इमाम जिंदा है, उसकी दुनियावी ज़िंदगी में उससे मदद मांगते हैं बतौर वसीला, इसी तरह मरने के बाद भी बतौर वसीला मांग सकते हैं। हाँ ये है कि अगर दुनिया में उसको मौसर बिज़ात मान लिया तो फिर चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो वो शिर्क हुआ करता है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इन पेचीदा चीज़ों को जो बज़ाहिर बहुत बड़ी है लेकिन हकीकत में बहुत बाल बराबर फ़र्क है, अल्लाह हमें इन्हें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।